अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब? माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश किया करें। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। हाँ, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहे हैं माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। ऐसे होता है। अच्छा, भूल गए। तो आज की हमारी वीडियो है बेस्ट गुजराती थाली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। का टाइटल है बेस्ट गुजराती थाली इन अहमदाबाद, गोवर्धन थाल। बहुत कुछ है थाली में यार। Hi everyone and welcome back to my channel. In today's video I'm going to be taking you for a very special meal with me. I am going to eat my first Gujarati thali in Ahmedabad and I am here at Govardhan Thal. Govardhan Thal is supposed to be very famous. It has a huge celebrity clientele and I'm going to be trying out their Gujarati thali today. As you know, Gujarati thali is a huge elaborate meal consisting of many sabzis, farsan, dal, curry, rice, rotis and of course dessert. So let's go indulge in this really massive Gujarati thali. So now this whole plate along with all the katoris is going to get filled up, and here comes the first item, which I think is the sweet dish. Then we have this dahi kachori chaat and it's honestly looking so good. Now the sabzis are coming in and I think we have 4 different kinds of vegetables here. And oh my god, the smell, wow. And that is some hot Gujarati dal, some piping hot puris, rotis with lots of ghee, and this seems to be a pattis. Oh my god, he's given me one more. And some roasted papad. There's also chas and some accompaniments like lemon, pickle, some sweet chutney and green chutney. I think that goes with the farsan. Some chopped tomato and cucumber salad. ये मट्टो है, ग्रीन पिस्ता मट्टो, श्रीखंड, पनीर का वेजिटेबल है, पनीर, ये चौली है, चौली कटोर, ये आलू का सब्जी है, ये फ्लावर टमाटो है, बटाना, गुजराती दाल, पूरन पूरी, गुजरात में फेमस आइटम है, पूरी है, पेटिस है, फुल्का रोटी है, पापड़ है, सलाद है, ग्रीन चटनी है, स्वीट चटनी है, लेमन है और पिकल है. And this is bajra roti with some gur on top and of course some ghee. The khasta kachori was nice and crunchy and the chutneys really gave it a good flavor. The dhokla was fresh and spongy. This was the farali pattis and it had such a nice flavor from the potatoes, peanuts, raisins, etc. inside. I love Gujarati sabzis and even this simple sabzi of gobi and peas was so flavorful. And Gujarati aloo tomato is my favorite, and I love the chavli. The flavor from all the spices in this was just so good, and the paneer had a strong garlicky taste but still really good. And this is my favorite thing to do, dip garam puris in Gujarati dal and have it. The sweet dal, oh my god, I love it. In winters, bajra roti is a must, and this can be a little dry, so make sure you have it with some gravy, some ghee and some gur. And finally, Gujarati curry and rice is a must in a Gujarati thali. This is sweet curry and comfort food level. Oh my god, I've managed to finish a lot of my thali. I think except the chutneys, I'm done with everything. So now I'll move to this sweet dish, and we have Shrikhand and Puran Poli. This Puran Poli is small but it's actually quite thick and chunky, and you can see the layer of gur or jaggery here, and this was just such a delight to eat. I mean, so much ghee, sweetness, just a winner. If you like Shrikhand or dessert made from hung curd, then you'll love this pista matto. And lastly, chas to wash everything down.
So that was it from my experience at Gordhan Thal. I thoroughly enjoyed my meal here. It was so massive and so indulgent, and I think they got a lot of their things right. Their food was very tasty. In terms of variety, you had 4 different sabzis, 2 different croissant, 1 chaat, so many different types of rotis, rice, dal, curry, and 2 different types of desserts. So I think that is massive. And this thali costs rupees 325 per person including tax, and you can't share the thali, it's only for 1 person. So make sure you come and enjoy it, and make sure you finish the whole thali so that you're not wasting anything. That is it for me in this video. Leave me a comment below if you'd like to see more from my Ahmedabad trip, and don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in my next video. Bye. ओके जी जनाब, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि सब थोड़ा थोड़ा सा क्यों था। पागल हो गए आप। उन्होंने आखिर में ये तक कहा कि अगर आप थाली आते हैं यहाँ पे लेते हैं थाली, तो थाली को अच्छे से पूरा फिनिश करिएगा ताकि फूड ज़ाया ना हो। तो मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए तो इनफ है। और मैं अपना अगर आपको बताऊँ कि माशाल्लाह मैं खुश खुराक हूँ, सही ठीक ठाक खुराक है मेरी, अच्छी खुराक है, खुश्क खुराक, खुश खुराक हूँ, डबल खुश्क। आप तो खुश्क रहेंगे मुझे पता है मेरी खुराक को देखकर, माशाल्लाह। तो ये थाली मेरे जैसे इंसान के लिए भी इनफ थी। 2 मीठे थे आपने देखा, बाकी दाल भी थी, सब्जियां 3 टाइप की सब्जियां थी, बाकी ऑल टुगेदर अगर मैं काउंट करूँ तो 3 रोटियां थी, पराठा टाइप था, एक सिंपल चपाती टाइप रोटी थी, एक पापड़ टाइप थी, 2 पूरियाँ थी। तो मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए बहुत है, बिल्कुल बहुत ही है। अगर ना मिले तो ये हालत हो जाती है। तो ये है कि कुछ कह रही थी आप? हाँ, तो मैं ये कह रही थी ये, और उसके बाद भरपूर तरीके से अगर आपको छाछ मिल जाए तो अच्छा, मैंने सुना छाछ में नशा होता है। नहीं, होता ये है हाँ। कि लस्सी पीने के बाद नींद आती है, लेकिन उसके लस्सी और छाछ में डिफरेंस है। देखिए मेरी बात सुने, पंजाब में या कुछ राज्यों में उसको छाछ कहते हैं, लस्सी को, ठीक है। लस्सी कुछ लोगों में लस्सी कहते हैं, छाछ और लस्सी, मक्खन निकलने के बाद जो पानी बचता है ना, उसको छाछ कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो दूध होता है, ठीक है, दूध को दही बनती है, दही में से मक्खन अलग होता है, यूं करके हिला के मशीन से, बाज़ाफ़ा हाथों से, जब वो मक्खन ऊपर आता रहता है तो मक्खन निकाला जाता है, जो नीचे पानी बचता रहता है ना, उससे कहते हैं छाछ। अच्छा, लस्सी बनाने का तरीका तो डिफरेंट, ये हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल शॉप्स पे बिकती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से गाढ़ी बनती है, उसमें से मक्खन अलग नहीं करते, वो डायरेक्ट ही मतलब अच्छा, वो हमारे यहाँ पे नहीं। वो मैंने इनका भी एक फूड व्लॉग देखा था, ऐसे ही मैंने रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन देखा था उसमें लस्सी बन रही थी, वो बहुत फेमस लस्सी है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वो बाकायदा मिट्टी का पोट होता है ना, उसके अंदर वो बना रहे थे लस्सी और काफ़ी बड़ी अमाउंट में बना रहे थे, बहुत बड़ी क्वान्टिटी में बना रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने दूध भी डाला था, दही भी डाला था, और आई थिंक क्रीम भी ऐड करी थी, चीनी भी ऐड करी थी, और काफ़ी अच्छे से उसको मतलब जिसको बोलते फेंटा था, घोटा था, और उसके बाद लस्सी बनी थी। तो मुझे लगता है लस्सी में और छाछ में डिफरेंस है। बिल्कुल, लस्सी अब तो प्रोफेशनल तरीके से बनती है, उसमें से मक्खन अलग नहीं होता। लेकिन गांव देहातों में मक्खन निकालते हैं ना, क्योंकि वो तो घी, देसी घी खाते हैं, क्योंकि वो तो दाल ये फलाने घी जो रहते हैं ये नहीं खाते, तो वो तो दूध से ही घी निकालते हैं। तो ऑटोमेटिकली हर घर में हर दूसरे तीसरे दिन बचता है छाछ, फिर उसके कुछ सालन बनते हैं, और इतना छाछ होता है कि हर खाने के साथ ऊपर से वो पीते हैं, उसको भी वेस्ट नहीं करते, यानी कि वो उनका वेस्ट मटीरियल है मक्खन निकलने के बाद, लेकिन ऑटोमेटिक, लेकिन वो खाने के साथ पानी के बजाय वो पी जाती है। तो इसलिए गाँव देहात में छाछ जो है उसकी एक रवायत है, बहुत सारे, जैसे गुजरात में या कहीं पर भी, तो इस थाली में भी इंक्लूडेड था। अच्छा, एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप जाती हैं गुजरात और आपने वहाँ के मुख्तलिफ खाने जो हैं, नसीब मुबारक करे, आपने गुजरात में वो तो नहीं है, अच्छा, तो खैर बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूँ पता करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे कुछ ख़ास है, वहाँ पे ख़ास है, वहाँ पे ख़ास है। आपने गलत उनका टॉपिक छेड़ दिया। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे मुख्तलिफ ख़ास स्पेशल खाने खाने जाएंगी गुजरात में जी, तो इस थाली का क्या फ़ायदा आपका? इसमें
अच्छा, तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप गुजरात के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाती हैं? डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस हर रेस्टोरेंट स्पेशल किसी एक चीज़ का होता है, या मुख्तलिफ स्ट्रीट फूड में जाती हैं, कहीं पे क्या मिल रहा है, कहीं पे क्या मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर यकजा होके एक साथ मुझे सारी चीज़ें ये बात तो आपको 10 में से 10 नंबर पूरे दिए जाते हैं। मुझे नहीं देंगे नंबर? अच्छा, तो आपका सवाल का जवाब सही हुआ, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मैंने आज आपको मान लिया कि इस थाली में आप गुजरात का थोड़ा सा सारी डिशों का टेस्ट जो है बिल्कुल चख लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था। तो ये कि एक गुजरात का पूरा कल्चर एक थाली के अंदर समोया हुआ है, बिल्कुल। छाछ भी है, स्वीट रोटी भी है। अच्छा, गुड़ वाली रोटी मैं आपकी तो जान है वो। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से कैसे बनी होगी, किस तरीके से होगी, गुड़ और रोटी के अंत हो जाएगा। अच्छा, होता ये है कि मैं नमकीन की बहुत शौकीन हूँ, तो नमकीन चीज़ें मैं बहुत खा रही होती हूँ, और ये मीठे के बहुत शौकीन है। तो ये जब भी दोपहर में अक्सर ऐसा होता है कि हम लंच करते हैं, तो लंच के बाद ये कहते हैं बस मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए, थोड़ा सा मीठा चाहिए। तो इस टाइप की एक रोटी जो होती है ना, गुड़ की रोटी, गुड़ की होती है, गुड़ भी होता होगा मिक्स मेरे ख्याल में, मे बी, लेकिन वो कुछ देसी घी में बनी हुई छोटी छोटी सी, इतनी बड़ी इस साइज़ की होती है। समोसे वालों के पास मिलती है, समोसे वगैरह वालों के पास मिलती हैं, और उसे हम कुंडे कहते हैं ना हम लोग। तो वो ये अक्सर ले आया करते हैं लंच में, और लंच के बाद खाया करते हैं, और ऐसे मज़े ले रहे होते हैं। हाँ, मज़ा आ गया, रूह खुश हो गई। तो अभी जब मैंने देखा ये वाली रोटी को भी ताड़ इतना जैसे, तो मुझे लगा इनको ये वाली याद आ रही होगी, और आज लंच में इन्होंने खाया भी नहीं है, वो इनको ज़्यादा मिस कर रही है। अच्छा, जब भी जितना अच्छा लंच हो या डिनर हो, उसके बाद थोड़ा सा मीठा उतना ज़्यादा दिल करता है। बिल्कुल। तो एक आदत सी है। और एक और चीज़, लस्सी के बारे में मैंने सुना है गांव देहात में, छाछ के बारे में, कि आप ये जितनी पिएंगे ना, आपकी प्यास ही नहीं बुझती, आपको अच्छा खासा पीते रहते हैं। मतलब आप खाना खा रहे, आपकी जो नॉर्मल रूटीन है खाने की, अगर 2 रोटियां हैं, आप गांव में बैठ के छाछ पिएंगी, वहाँ का पानी पिएंगी, शहरों के मुकाबले में आप ज़्यादा खाएंगी, और आपको एकदम से भारीपन महसूस होता है, पेट भरा हुआ, आपको महसूस ही नहीं हो रहा होगा, आप खाए जा रही हैं। यहाँ पे लेकिन अगर मैं शहरों की बात करूँ तो हम जैसे लस्सी पी लेते हैं, एक गिलास, नहीं, वो तो हेवी लगता है बहुत, वहाँ पता ही नहीं है, वो पानी, छाछ पानी की तरह होती है, लस्सी गाढ़ी होती है। तो एक मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जिसमें हमने गुजरात की खूबसूरत सी थाली देखी, और हमारे मुंह में पानी आ गया, और हमने, बड़ा लोकल एक्सेंट है आपका यार। नहीं, ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपको कुछ ऐसे लगे कि जैसे कोई यूनिक, कोई डिफरेंट बंदा है जो बात कर रहा है। सही है? आप वैसे ही अपने आप में बहुत यूनिक हैं। शुक्रिया बोलो या चमाट दूँ? चमाट देना है तो बैक कैमरा ने मेरी बड़ी इज्जत है। अच्छा बोलना है तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, आप मेरा सम्मान। इसका मतलब है चमाट मैं आपको देता रहता हूँ, आप तो बदतमीजी कर रही हैं। आप मुझे उनके सामने मेरे बाल खींचे, मुझे हमारे एक व्यूअर थे बेचारे आ गए थे, उन्होंने आपको बोला तमीज से, औकात में रहे। वो तो प्यार से कैसे बोला? जब से आपने टाइट किया ना भाई, आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच। आपने जब से इनको टाइट किया ना, ये मुझे हाथ लगाते हुए डर रहे हैं, हम कह रहे नहीं तो वो मुझे सुनाएंगे। देखिए जब मैंने मारता हूँ ना, प्यार से मारता हूँ, जैसे प्यार। उस दिन मेरे बाल खींचे थे, वो सही कह रहे थे। तो मैं कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।